हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एट्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट important for the exam view. How has the long coastal lines been to beneficial to the India? There is a most important question here. How has the long coastal lines been to beneficial to the India? The answer here, the Arabian Sea and the Bay of Bengal extension of the India is ocean lies to be the west and east of the India peninsula, and the India is ocean lies to be its south. The total length of the coastal line of the main land of India is included to Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 km. The long coastal line of India has a help in the maritime trade since to the ages. The central location of the India at the head of the India is ocean has provided it a strategic location. Along there is a trans-India is ocean routes. India can be established close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with the Southeast and East Asia from the eastern coast. The long coastal lines has also played a major role in the influencing the climate of India. There is an important line here. The long coastal line has also played a major role in influencing the climate of India. It's a provide to the opportunity for the fishing and extract of petroleum. It is served as a natural boundary protecting India. There is a most important question. I repeat answer again. The Arabian Sea and the West of Bengal extension of the India oceans is important. There are only Arabian Sea and Bay of Bengal. There is an important point here. The lie to be west and east of India peninsula, and India ocean is lies in the south. The total length of the coastal line of the main land of India is included Andaman and Nicobar and Lakshadweep. There is a most important 7,516.6 km. There is an important point for exam view. The total length of the coastal line here 7,516.6 km, and there are location here are included Andaman and Nicobar, Lakshadweep. The long coastal line of India has helped in a maritime trade signage, and the central location of India at the head of the Indian Ocean has provided it a strategic location. The strategic location is also important point here, and the trans-Indians is the ocean route. There is important the long trans as the Indian ocean routes. India can establish close contact with the West Asia and Africa, Europe from a western coastal, and with the Southeast and East Asia from to eastern coast. There is also important line, and the next line important here. The long coastal line has also play a major role influence the climate of India. There is an important line. Note down, the long coastal line has also play a major role in influencing the climate of India. The effect of the climate on this coastal line here, and it is a provide to the opportunity for the fishing and extraction of petroleum. It is serve as a natural boundary protecting India. There is a most important question and most important आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बहुत काफ़ी कुछ जो है समेट रखा है अपने आप में। अगर इसको आप समझिएगा तो कहते हैं आपको काफ़ी चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसी क्वेश्चन से, क्योंकि देखिए त्रिपाण सेंटर जो है उन क्वेश्चनों को लेता है जो पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। ठीक है, तो ये हर समय हर साल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसके सिवा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। कितना घुमा के एग्जामिनर देगा, इतना घुमा के जितना जो है आप सिंपलिसिटी उसको कर सको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। अगर इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है
कि लंबी तटरेखा भारत के लिए किस प्रकार लाभदायक रही है। अब यहाँ पर बात की गई है हमारा लंबी तटरेखा की, ठीक है। जो लंबी तटरेखा होती है वो किस प्रकार भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। देखिए, लाभदायक सिद्ध होना बहुत जरूरी, जैसे हमारे लिए अभी पढ़ा है हमने कि दरारें जो है किस प्रकार माउंटेन जो है उसमें दरारें होती है वो किस प्रकार भारत के लिए हेल्पफुल था और किस प्रकार जो है विदेशियों के लिए भी हेल्पफुल था। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि लंबी तटरेखा भारत के लिए किस प्रकार लाभदायक रही है। अब देखिए, यही बात को अगर हम जानें तो कहते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का विस्तार और भारतीय प्रद्वीप के पश्चिम से पूर्व में स्थित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रही है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का विस्तार जो कि काफ़ी बड़ी है, भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम और पूर्व में स्थित है और हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई, देखिए लंबाई कम नहीं है, 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी लंबी रेखाएं हैं। आप देख सकते हो कि 7,516.6 किलोमीटर होना आम बात नहीं है। तो यानी सबसे जो है लंबी तटरेखा मानी जा सकती है। भारत की लंबी तटरेखा ने युगों से समुद्री व्यापार में काफ़ी मदद किया है, क्योंकि आपने जाना भी है और समझा ही है कि भारत में जो वास्को डी गामा का प्रवेश था वो समुद्री मार्ग ही था। और ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि लंबी तटरेखा ने युगों में बहुत से जो है समुद्री व्यापारों में काफ़ी मदद किया है और इसे सुगम रास्ता भी कहा जा सकता है, ठीक है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत के केंद्रीय स्थान ने से ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के साथ एक राजनीतिक स्थान भी प्रदान किया है। देखिए, ये हिंद महासागर के कारण, देखिए हिंद महासागर का नाम जो है भारत के यानी हिंदुस्तान के नाम से पड़ा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि एक अधिकार जो है हिंद महासागर का भारत का ही रहेगा। तो यही बात यहाँ भी दर्शाने की कोशिश किया गया है कि भारत के केंद्रीय स्थान से ट्रांस हिंद महासागर मार्ग के साथ एक राजनीतिक स्थान प्रदान करता है, यानी पूरे विश्व के साथ जो है एक राजनीतिक जो है जोड़ता है, राजनीतिक बंधनों में जोड़ देता है। भारत जो है पश्चिम तट से पूर्वी जो है पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ तथा पूर्व तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित कर सकता है। कहते हैं लंबी तटरेखा ने भारत की जलवायु को काफ़ी प्रभावित भी किया है। यानी देखा जाए तो लंबी तटरेखा ने भारत की जलवायु को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब सोचिएगा कि जलवायु किस प्रकार जो है यहाँ पर जो है भारत को प्रभावित करेगा, तो आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि भारत में अगर देखा जाए तो बहुत से विपदाएं जो है नहीं आती है। कारण क्या है? इसके बड़े बड़े जो है तटरेखा है, बड़े बड़े हिमालय हैं, ठीक है। तो इन्हीं कारणों के कारण जो है जलवायु काफ़ी प्रभावित होती है, ठीक है। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो जलवायु तो प्रभावित होगी। पानी क्षेत्र रहेगा तो जलवायु प्रभावित होगी, माउंटेन क्षेत्र रहेगा तो जलवायु प्रभावित रहेगी। माउंटेन देखिए अपने तरफ से जो है कोई भी दूसरे देशों से आने वाली हवा को हमारे भारत में प्रवेश करने से साफ रोक देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और समुद्र से अगर मान लीजिए हवा गुजर रहा है, तेज़ हवाएं चल रही है, तो उसका जो है समुद्र में भी प्रभाव कुछ न कुछ दिखाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं ये मछली पकड़ने और पेट्रोल के निष्कासन के अवसर भी काफ़ी अच्छे रूप में प्रदान करता है। यह भारत की रक्षा करने वाले जो है प्राकृतिक सीमा के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि कहते हैं इतने बड़े समुद्र मार्ग को है अगर पार करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके तटरेखा। और कहते हैं जो मछुआरे होते हैं और जो पेट्रोलियम निष्कासन करने के वाले व्यक्ति सब होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है तटरेखा यूज़ करते हैं। तो तटरेखा देखिए जितना लंबा तटरेखा होगा उतना फ़ायदे में रहेंगे, उतने जो है मछली पकड़ने को उनको अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये देखा जाए तो ये लंबी तटरेखा होना भारत के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है और इसके लिए जो इसके जनजीवन काफ़ी प्रभावित रहती है। तो ये क्वेश्चन भी कई मायने में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए समझ के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं है, तो मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसे बताया जाए जो आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ आंसर क्या है। देखिए शॉर्ट में कि आपको पता होगा कि भारत के लंबी तटरेखा जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर जो है पूरा विस्तार क्षेत्र है। इसी 3 क्षेत्रों में जो है पूरे जो है तटरेखा ये उपलब्ध है। और इसकी तटरेखा की जो अगर हम गणना करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के मुख्य तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। और ये जो है भारत के लंबी तटरेखा होने के कारण जो है युगों से जो है समुद्री व्यापारियों के लिए काफ़ी
मददगार सिद्ध हुआ है। और हिंद महासागर जो है शीर्ष पर भारत के केंद्रीय स्थान से ट्रांस हिंद महासागर के साथ राजनीतिक स्थान पर भी प्रदान किया गया है। और भारत पश्चिम तट के पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ जो है पूर्वी तट से जो है दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित कर किया है। किसके साथ? पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ। तो ये पॉइंट बन गया। लंबी तटरेखा ने भारत की जलवायु काफ़ी प्रभावित भी किया है, कि भूमिका भी निभाता है, जलवायु का भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है लंबी तटरेखा। ठीक है। और लंबी तटरेखा के कारण जो होता है मछली पकड़ने वाले और पेट्रोलियम निष्कासन करने वाले को भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है। और यह भारत की रक्षा करने वाले प्राकृतिक सीमा के रूप में भी कार्य करता है। आप क्लियर हो गया होगा आपको आंसर, कोई डाउट नहीं होगा। इसको अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी करोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए बन जाएगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना सा कार्य करना है कि यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा लेना है, जिससे जो बच्चों को देखना होगा वो देखेगा, जो नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। कम से कम आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, तिरपान सेंटर यही समझेगा कि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया।